کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ لاک ڈاؤن میں ناظرین گرامی ایک خاندان کس طرح 10 دن تک بھوکا رہا، بہت ہی اندوہناک کہانی آ رہی ہے۔ گنگا میں بہتے لکڑی کے باکس میں ایک نوزائیدہ بچی کس طرح سے ملی اور کیا ہوا، متن چکرورتی کے پولیس کیوں پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کینیڈا میں ایک اور اسلاموفوبیا کا واقعہ پیش آیا ہے، مسجد میں زبردستی گھس کر دھمکیاں وغیرہ دینے کی خبر تفصیلات سے سناؤں گا۔ ہندوستان میں کووڈ کے معاملات تو کم ہو رہے ہیں، لیکن اموات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، ایک تشویشناک بات ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کے گھر پر کیا بی جے پی کے حامیوں نے حملہ کیا؟ اعظم خان کی حالت ناگفتہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور جرمن نے ترکی کے ڈرونز کی کیوں تعریف کی وہاں کے اخبار نے، اور روسی وفد ترکی کیوں آ رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی کے امریکہ میں کورونا وائرس پابندیاں ختم ہو گئی تو کس طرح سے خوشیاں منائی گئی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کی کچھ ایسی تصویریں وقتاً فوقتاً نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا، ڈیجیٹل بھارت، برائٹ انڈیا، اور نہ جانے کس کس طرح کے دعوے کرنے والے مرکزی حکومت، بی جے پی حکومت کی پول کھل جاتی ہے۔ یہ زمینی حقائق کیا ہیں؟ ہندوستان میں یوں تو کورونا کی دوسری لہر سے ہر خاص و عام کو ناقابل فراموش تلخ تجربے سے دوچار کرایا گیا ہے، کرنا پڑا ہے، مگر کچھ غربت کے ماروں کے لیے لاک ڈاؤن کے دوران بھوک قیامت بن کر ٹوٹ پڑی ہے۔ علی گڑھ کا ایک خاندان بھی ایسے کرب سے گزرا کہ ان کی آپ بیتی سننے والے کو جذباتی کر دیتی ہے۔ کورونا کے بحران نے اس خاندان کا روزگار چھین لیا، اور 8-10 دن تک 6 افراد دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ بھوک سے تڑپتے کنبے کی اطلاع ایک شخص نے ایک تنظیم کو دی تو ان سب کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بھوک سے ایک کنبا اس قدر نڈال تھا کہ کئی کا جسم تو ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ روزنامہ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ علی گڑھ کے نگلا مندر علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک خاندان گزشتہ 8-10 دنوں سے بھوکا مر رہا تھا۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی، پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ گونڈا کی رہائشی سنجیو کو کنبے کی کربناک صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے شہر کے ہینڈز فار ہیلتھ تنظیم سے مدد طلب کی، اور تنظیم سے وابستہ افراد نے جب موقع پر پہنچ کر ان کا حال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ کوئی ساؤتھ افریقہ کی کہانی نہیں ہے ناظرین گرامی، جہاں غریب بستیوں کی کچھ تصویریں نکل کر کے آ جاتی ہیں، یا صومالیہ کی، بلکہ یہ بھارت کے اس علاقے کی یا اس ریاست کی، ایک شہر کی اور ایک علاقے کی بات ہو رہی ہے، جہاں کے ریاست کے سلسلے میں الگ الگ طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، جہاں پر رام راجیہ کے نام پر بہت زیادہ سیاست ہوتی ہے، جن علاقوں میں اسی رام کے نام پر ماب لنچنگ ہوتی ہے، بھیڑیوں کی طرح لوگ جو ہے مظلوموں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس علاقے کی یہ حال ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر میں آپ کو سناؤں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یو پی کے غازی پور ضلع میں گنگا ندی میں
बहते एक लकड़ी के बॉक्स में 21 दिन की मासूम बच्ची मिली है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के ददरी घाट के किनारे गंगा में बहते बक्से से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर जब एक शख्स ने उसे खोला तो वह हैरान रह गया। बक्से में देवी देवताओं की तस्वीर, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर, वो फ़ोटो, और जन्म कुंडली के साथ एक मासूम बच्ची चुनरी में लिपटी हुई थी। उसके बाद पुलिस को उसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने लावारिस बच्ची को आशा ज्योति सेंटर पहुंचाया और जांच में मसरूफ़ हो गई। ये मामला सदर कोतवाली इलाके के दादरी घाट का है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के दादरी घाट में एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में गंगा नदी में बहते बक्से के अंदर मिली, यानी किसी ने पैदा करने के बाद उसको लकड़ी के इसमें डालकर उसका सारी चीज़ें उसमें पेश करके उसको भेज दिया है। ये है इंसानियत कि गंगा के घाट पर किस तरह से जो है एक मासूम बच्ची को लकड़ी के बॉक्स में डाल करके छोड़ करके चला गया। हैरत की बात यह है कि उसमें देवी देवताओं के फ़ोटोज़ भी हैं। अब उससे वो लोग क्या पैगाम देना चाहते थे, और एक जन्म कुंडली भी उसके साथ रखी गई है, क्या किसी को देने के लिए रखी गई है, या बच्ची से परेशान होकर के रखी गई है, या फिर बच्ची की पैदाइश नाजायज़ तरीके से हुई है, किसी का भी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है ये ख़बर बहुत ज़्यादा फैल रही है आसपास के इलाके में। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ बंगाल। मशहूर व मारूफ फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में शामिल हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और उनके लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात ख़त्म होने के बाद बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती से मगरबी बंगाल पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन से मगरबी बंगाल इंतखाबी तशहीर के दौरान उनकी तकरीर को लेकर पूछताछ की गई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बंगाल इंतखाबात में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी पार्टी के स्टार कैंपेनर थे। बीजेपी में शमूलियत के बाद मिथुन ने 7 मार्च को एक तकरीर की थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस पूछताछ से बचने के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने अदालत में अर्जी भी दाखिल की, लेकिन उन्हें पुलिस की पूछताछ में ताउन करने की हिदायत दी गई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई उसमें उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मिथुन चक्रवर्ती की तकरीर की वजह से मगरबी बंगाल इलेक्शन ख़त्म होने के बाद तशद्दुद भड़का। इस मामले में मिथुन ने कहा कि तकरीर के दौरान उन्होंने सिर्फ अपनी ही फिल्मों के डायलॉग दोहराए थे, जिसका हकीकी मानों में कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी तकरीर के एक हिस्से में कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा यहाँ और तुम्हारा जिस्म कब्रिस्तान में मिलेगा। मिथुन चक्रवर्ती की इंतखाबी तकरीर के दौरान लोग खूब तालियां बजाते हैं। वो अपनी तकरीर के दौरान ये भी कहते हैं कि मुझे बग़ैर जहर वाला सांप समझने की भूल मत करना, मैं असली कोबरा हूँ, जो आपको डसता है तो आप फ़ोटो बन जाते हैं। बाक़ायदा नाज़रीन गिरामी, ये सियासी लोग हैं, जब अदाकार बन जाते हैं तो तमाम धर्मों के लोगों की मोहब्बतें लेते हैं, मशहूर हो जाते हैं, दौलत बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है किसी पार्टी का बनकर के किसी ख़ास मज़हब की शनाख्त बन जाते हैं। बहरकैफ इस तरह भारत में होता ही रहता है, और आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं कि कितनी ऐसे अदाकार हैं जो इस वक्त बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं। वजह क्या है आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। नाज़रीन, कनाडा में इस्लामोफोबिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, एक और वाक़या पेश आया जिसमें खातून और मर्द ने मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और उसमें धमाका खेज़ मवाद लगाने समेत इंतज़ामिया को संगीन धमकियाँ दी मस्जिद में घुस कर के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा के दारुलहुकूमत टोरंटो के इलाके स्कारबोरो में वाक़ इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में खातून और मर्द ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस पर लोगों ने फौरी पुलिस को इत्तला कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐनी शाहिदी ने बताया कि स्कारबोरो एरिया में खातून और मर्द ने मस्जिद में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी और धमाका खेज़ मवाद लगाने की भी धमकी दी, जिस पर फौरी पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस का मानना है कि उन्हें मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब इस्लामी इंस्टीट्यूट से शिकायत मौसूल हुई, जिसमें ख़वातीन और मर्द के ज़बरदस्ती मस्जिद में घुसने, धमकियाँ देने, गालियाँ देने, असलहा और धमाका खेज़ मवाद मस्जिद में रख कर के लोगों को उड़ा देने और अलग अलग तरह की जो है धमकियाँ दी जा रही थी। वैसे नाज़रीन गिरामी, कनाडा वो मुल्क था जहाँ पर जो है अलग ही तरह से यहाँ पर तमाम लोगों को और तमाम समाज और तबक़ात को एक नज़र से देखा जा रहा था, और कनाडा से बहुत ही कम ख़बरें ऐसी आती थी, बल्कि ख़बरें आती ही नहीं थी जिसमें इस्लामोफोबिया का शिकार कोई अफराद जो है वो किसी तरह हिजाब को लेकर ये बात हो या मस्जिद में घुसने के लिए किस्म की आज़ादी यहाँ पर थी। अब कनाडा से भी इस तरह से जो है ख़बरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि क्या कुछ हुआ था, एक फ़ैमिली को कुचल दिया गया था। उसके बाद ये दूसरा वाक़या है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ, और तशवीशनाक बात यह है, आप लोग जानते हैं कि भारत में इस वक्त कोविड-19 के
मरीजों की तादाद में लगातार कमी आती जा रही है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि महलूकीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 के नए मामलात के बाद भी अमवात की शरह में इजाफा काबिल तशवीश। माहिरीन का मानना है मई के आखिरी हफ्ते में ICU में जिन लोगों को इलाज के लिए दाखिल किया गया था उन्हीं मामलात में ज़्यादातर अमवात पेश आए हैं। हिंदुस्तान में कोविड के नए मामलात में बदस्तूर कमी के साथ पिछले 24 घंटों में 60,461 मामलात 29 मई के बाद सबसे कम दर्ज किए गए। अमवात की तादाद अब भी ज़्यादा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी करदा तफसीलात के बमूजिब पिछले 24 घंटों में 2,726 अफराद वबा से जांबर ना हो सके। बेंगलुरु के जयनगर में वाक़े मणिपाल अस्पताल में दाखिली अद्वियात के कंसल्टेंट फिजिशियन अरविंदा जी यम ने IANS को बताया कि मई 2021 के दूसरे हफ्ते में हमारा कोविड-19 उरूज पर था। इस उरूज के दौरान MICU में दाखिल किए जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब पेश आ रही अमवात में ज़्यादातर मामला 2 से 3 हफ्ते कबल MICU में दाखिल किए गए लोगों की पेश आ रही है। शालीमार बाग, फोर्टिस अस्पताल, पल्मोनोलॉजी और HOD और डायरेक्टर विकास मायूर ने कहा है कि इस मरतबा बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, भारत में कोविड की मरीज़ों की तादाद में कमी तो आ रही है, लेकिन अमवात की तादाद में लगातार इजाफे को लेकर के अभी भी तशवीश बनी हुई है। आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह के घर पर BJP हामियों ने हमला किया। जी हाँ, उन्होंने खुद इस बात का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ज़राए से आ रही खबरों के मुताबिक नॉर्थ एवेन्यू इलाके को एक सख्त सिक्योरिटी वाला हिस्सा माना जाता है कि 2 अफराद ने सिंह के मकान पर लगी नाम की तख्ती के साथ तोड़फोड़ की और ज़बरदस्ती घर में दाखिल होने की कोशिश की थी। पुलिस का मानना है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिंह पर ना तो कोई हमला हुआ है और ना ही जिस्मानी तोपों के साथ मारपीट की गई, लेकिन हमला करने की कोशिश हुई थी। इस तरह के इल्ज़ामात सिंह ने लगाई है। ट्विटर के ज़रिए सिंह ने इस बात की जानकारी भी दी और कहा कि मेरे मकान पर हमला किया गया। गौर से सुने, BJP हामी किसी भी किस्म की जारहियत में तुम मुलस हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में सिंह ने अभी जो राम मंदिर के अराजी को लेकर के जो घोटाले की बात सामने आई थी, 2 करोड़ में जो ज़मीन ली गई थी उसको 18 करोड़ में बेचे जाने की बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, इसको हमने भी तफसीलात से पेश किया था। इस सिलसिले में इन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग तरह की बातें सामने रखी थी। उसी के बाद से उनके घर पर हमले की खबर सामने आ रही है। अब नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं आज़म खान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट आज़म खान की तबीयत लगातार नासाज चल रही है। लखनऊ वाक़े मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव तो आ गई, लेकिन जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं और कई तरह के मर्ज़ में मुब्तला बताए जा रहे हैं। आज़म खान की नागुफ्ताबी हालत के बारे में उनकी बीवी तज़ीन फ़ातिमा ने मीडिया के सामने तफसील से बताई हैं। तज़ीन फ़ातिमा ने बताया कि आज़म खान की तबीयत बहुत ख़राब है, वो कई बीमारियों में मुब्तला हैं और जेल में रहने की वजह से इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। उनके मुंह में अल्सर भी हो गया है जिससे वो खाना नहीं खा पा रहे। इसके अलावा आज़म खान के फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है जिसकी वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरह की तफसीलात फराहम करने के बाद एक मरतबा फिर आज़म खान की सेहत को लेकर के इस वक्त तशवीश बनी हुई है बहुत सारे हलकों में। नाज़रीन, तुर्क साख्ता ड्रोन्स की तारीफ़ हर एक मुल्क कर रहा है। अब बहुत सारे मुल्कों ने जहां तारीफ़ की उसमें अब जर्मनी का नाम भी शामिल हो गया है। तुर्क साख्ता ड्रोन्स को जर्मनी के एजेंडे में बड़ा अहम मकाम हासिल हो चुका है। इस बार हैंडल्सब्लट अखबार ने तुर्की के बनाए हुए ड्रोन्स की जानिब सबकी तवज्जो मबजूल करवाई। अखबार की खबर के मुताबिक तुर्की के ड्रोन्स ने शाम, लीबिया और काराबाग में अपनी मोहर सबत कर दी है और अब पोलैंड और यूक्रेन इन ड्रोन्स को हासिल करने के लिए कतार में लगे हुए हैं और तुर्की के इन तैयार करदा ड्रोन्स की दिल खोल कर तारीफ़ की गई है। अखबार के मुताबिक 41 साल तुर्क कारोबारी शख्स ने अपने मुल्क को मुमकिन जंगों में बेहतर मकाम दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। मशरक़ी वस्ता के उमूर के माहिर चार्ल्स लिस्टर ने बताया कि बायर कतार ड्रोन्स ने जंग में 20वीं सदी में रूसी AK-47 मशीन की तरह एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह लंबी रिपोर्ट है, लेकिन इसको मुख्तसर करते हुए बताऊं कि जिस अंदाज में तुर्की के दिफाई निज़ाम में इस वक्त तक़वियत मिल रही है और जिस तरह नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ दिफाई निज़ाम को मजबूत कर रहा है तुर्की, अब यूरोपियन ममालिक उसको सराहने लगे हैं और उसको ख़रीदने के लिए भी कतार में लगे हुए हैं। आइए
ناظرین میں آپ کو لے چلوں روس ترکی کے ساتھ پروازوں کی بحالی سے قبل صورتحال کے جائزے کے لیے روسی وفد ترکی آ رہا ہے۔ روس انسانی صحت و صارف حقوق سروس کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق روس اور ترکی کے درمیان اس سے قبل طے پانے والے سمجھوتوں کے دائرہ کار میں رواں ہفتے کے وسط میں روسی وفد ترکی میں کورونا وائرس کی صورتحال کے جائزے کے لیے ملک کا دورہ کرے گا۔ بیان کے مطابق جائزہ رپورٹ کے پیش نظر رکھتے ہوئے ترکی کے ساتھ پروازوں کی بحالی اور ٹورزم سروس کے آغاز سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ ویسے بھی ناظرین گرامی، رشیا کی اور ترکی کی دوستی آپ جانتے ہی ہیں کہ الگ انداز میں ان لوگوں کو الگ الگ میدانوں میں اور الگ الگ شعبوں میں یہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، روس اور ترکی۔ ناظرین، امریکہ میں کورونا وائرس پابندیاں ختم ہو گئیں، جس کی خوشی میں مجسمہ آزادی کے قریب آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی کا مقصد ہیلتھ کیئر ورکرز کو کورونا کے دوران ہمت کا مظاہرے کرنے پر خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ گزشتہ سال مارچ امریکہ میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد ملک گیر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جس سے ملک میں زندگی کا پہیہ جام ہو کر کے رہ گیا تھا۔ امریکہ پوری طرح سے اقتصادی طور پر نچلے پائیدان میں آتا جا رہا تھا۔ اس درمیان میں اچانک اس وقت کورونا کی پوری پابندیاں ختم ہونے پر لوگوں میں خوشی دیکھنے کو ملی اور پٹاخے پھوڑ کر کے آتش بازی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔